हाल ही में 20 दिसंबर 2023 को सेंट पॉल कोएड स्कूल आनंद नगर में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। स्कूल के प्रांगण में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे गुलशन बामरा, जो कि बतौर प्रमुख सचिव पर्यावरण पशुपालन कृषि एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश सरकार में पदस्थ। कार्यक्रम की शुरुआत में विशिष्ट अतिथि फादर बाबू जॉन, फादर डॉक्टर सिरिल जोसेफ एवं प्राचार्य फादर जैसन, शाला प्रबंधक फादर सेबेस्टियन ने बैंड की मधुर ध्वनि के बीच मुख्य अतिथि गुलशन बामरा की आगवानी की। इसके बाद स्कूल के प्रांगण में विद्यालय की ओर से शाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बताते हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत बाल वृक्ष भेंट कर किया गया। Chief guest of the day, Shri Gulshan Bamra IAS. It is a great honor to introduce you to our audience. Shri Gulshan Bamra had an exceptional and outstanding career as an ex-cadet from Sainik School, Jammu, and pursued his higher education in electrical engineering from IIT Delhi. He received his professional training from many reputed national and international institutes in India and abroad. He also served as the collector and district magistrate at Rajgarh, Sihor, Balaghat and Jabalpur. Presently, he is posted as Principal Secretary of the Environment and Youth Department with the Government of Madhya Pradesh. We request Reverend Father Sebastian, our manager, to welcome our guest of honor with a sapling. Let me take a moment to introduce our special guest of the day. Reverend Father Cyril did his Master's in Licentiate of Theology from Radboud University, the Netherlands. Further, he did his PhD in Tilburg University, the Netherlands. He was a director at SPD Rishikesh and also served as a theology professor in Jagdalpur, Bhopal. Now, I invite Reverend Father Jason, our principal, to kindly welcome our special guest with a sapling. Thank you, Father. Reverend Father Babu John Skema, our guest of honor, served as a principal in various SEMA institutions in Kareli, Guna and Narsinghpur, Madhya Pradesh. We welcome you to this array of Spectrum Galleria. I request Reverend Father Johnson, Principal, Christ College, to welcome our guest of honor with a sapling. इसके उपरांत सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। जिसके बाद छात्र छात्राओं ने सभी के लिए प्रार्थना की। विशेष अतिथि फादर बाबू जॉन ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को मौका दिया जाता है कि वो सीखने में शामिल हों। It's a wonderful occasion to showcase yourself on this beautiful day of exhibition, the annual program. The NDP and NCF underlines one fact, that is experiential learning
by all. And that is what every occasion the students are given the chance to do something hands-on learning. वहीं फादर डॉक्टर सिरिल जोसेफ ने कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया को छात्रों का समाज के प्रति योगदान बताया। Today at St. Paul's, this Galleria, Spectrum Galleria 23-24 is not just a science exhibition, I believe. It's your contribution to save the earth. It is the creativity of your own self. You are contributing to society. You yourself are doing something and then you want to present to us. Instead of becoming consumers, you're contributing. And I congratulate the school, the principal, staff and students for taking up this as a challenge and doing it so that students perform something, they contribute to society. जबकि मुख्य अतिथि गुलशन बामरा ने कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के उपाय बताते हुए उपस्थित जन समूह और छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की। पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, पेड़ कम लग रहे हैं, तो इस संतुलन बिगड़ने के कारण क्या स्थिति बन गई कि मतलब आज की डेट में वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है सिर्फ 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से आज तक जो है टेम्परेचर बढ़ा है और उस टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत सारी समस्या आने की बहुत सारी समस्या। मैं जो है अभी वहाँ से घर से गाड़ी पे आया हूँ, डीजल पेट्रोल जला है। डीजल पेट्रोल जलने का मतलब फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना। ऐसे में एयर कंडीशनर यूज करता हूँ, ऑफिस में चलता है, उससे होता है। मैं खाना खाता हूँ, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो एक व्यक्ति, हम सब में से हर व्यक्ति प्रतिदिन, मुझे जो कैलकुलेशन बताई गई है वो 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड में रोज छोड़ता हूँ। मतलब ये हम सब में लगभग ये स्थिति है। मुझे अगर कार्बन न्यूट्रल बनना है, मुझे पर्यावरण में बैलेंस अपने जीवन में, मैं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं वापस जो है मतलब दुनिया में वापस पौधों में फिक्स हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए मुझे कुछ करना है तो मुझे कितने पौधे लगाने पड़ेंगे। कार्यक्रम के मौके पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथियों के समक्ष शाला के नौनिहालों और छात्रों के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसका नजारा देखते ही बनता था। तदुपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुलशन बामरा के करकमलों से कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया का उद्घाटन किया गया। आदि मानव कुछ कर रहे हैं। मुख्य अतिथि गुलशन बामरा ने कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया को देखा और बच्चों से सवाल भी पूछे। This is a virus and it's a portable event. This is it by future. मुख्य अतिथि गुलशन बामरा ने प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई बायोस्कोप का अवलोकन भी किया। Thank you.
छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का चलित मॉडल भी देखा और प्रसन्नता व्यक्त की। अतिथि गुलशन बामरा ने बच्चों के साथ घुल मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। Decompose and dissolve my natural agent that remains on the earth for several years. स्पेक्ट्रम गैलेरिया के अंतर्गत शाम 4 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिसमें चावड़ा हॉल में अभिभावकों और मेहमानों के मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। मॉल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये धरती हमारे लिए क्या कर नहीं करती। चावड़ा हॉल में इस संगीत कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि फादर बाबू जॉन, फादर डॉक्टर सिरिल जोसेफ, प्राचार्य फादर जयसिंह, शाला प्रबंधक फादर सेबेस्टियन भी मौजूद रहे। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। प्राचार्य फादर जैसन ने बताया कि स्पेक्ट्रम गैलेरिया थीम का मकसद बच्चों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। बच्चों के अंदर यही भावना हम पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले अपनी धरती को बचाना है। इसकी वजह से ही हम बच जाते हैं। अगर हमारे भारत देश में कुछ विकास है या प्रगति हो रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे धरती को बचाना है ना। प्रदूषण से सबको बचा के रखना चाहिए। तो इसलिए हम उस थीम को ज़्यादा स्ट्रेस देकर ही बनाया गया है। ये एनवायरमेंटल इश्यूज हमने उठाया है। प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चे सिर्फ किताबों में नहीं सीखते, वो देखते हैं, वो बनाते हैं मॉडल, तो उनको पता चल जाता है भाई इससे ऐसे होता है। अभी ओशन के बारे में बताते हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो प्लास्टिक बोतल उनके अंदर अवेयरनेस हो जाता है अपने आप। तो हमको लगता है ये छोटे छोटे कदम जो हमने उठाया, उससे ये जो आप पूछ रहे थे आत्मनिर्भर होने के लिए उनको प्रेरणा जरूर मिलेगी। उद्घाटन के बाद अभिभावक बड़ी संख्या में प्रदर्शनी को देखने पहुंचे, जिसमें स्पेक्ट्रम गैलेरिया के पहले चरण में नन्हे मुन्ने बच्चे जानवरों के भेष में जंगल में घूमते प्रेम के साथ संरक्षण की भावना का संदेश दे रहे हैं। प्रदर्शनी में विज्ञान वर्ग के छात्रों द्वारा समुद्र में फैले प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने, मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण कम करने के सुझाव, फैक्ट्रियों की गंदी हवा को शुद्ध कैसे करें, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को उपयोगी बनाने के साथ ठोस गंदगी से बिजली निर्माण, वनों का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण को चलित मॉडल द्वारा दर्शाया गया। हिंदी विभाग में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा को पर्यावरण से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की चलित मॉडलों को प्रदर्शित किया। विभाग में वर्णमाला की सांप सीढ़ी तथा प्रिंटिंग प्रेस ने दर्शकों को अत्यंत आकर्षित किया। वहीं संस्कृत विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक भारत का दर्शन भी कराया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कक्षाओं में लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की कलाएं भी छटा बिखेर रही हैं। स्पेक्ट्रम गैलेरिया के अंतर्गत प्रदर्शनी में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के छात्रों द्वारा एनसीसी के प्रति जागरूकता एवं रुझान पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के पोस्टर निर्माण किए गए थे।
इसकी जो लेंथ है वो 17.5 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर्स है। इसकी स्पीड मैक 24 है। इसका इंजन एक 3 स्टेज सॉलिड इंजन है जो 3 भागों में से बटा है, एक इधर टॉप, मिडिल और बॉटम में। वहीं एनसीसी के टीचर और छात्र छात्राओं द्वारा दर्शकों एवं बच्चों में आर्मी के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से जानकारी भी दी जा रही है। ये प्रॉपर इसके नीचे प्रॉपर रहता है जिससे मिलता है डायरेक्शन देता है कि डायरेक्शन। वहीं फाइटर प्लेन युद्धपोत INS आर्म्स अग्नि मिसाइल के मॉडल भी रखे गए हैं। सेव करने के लिए इसका नाम है INS तलवार। INS मींस इंडियन नेवल। ये मॉडल आखिर तक दर्शकों की पसंद का केंद्र बने। इसको क्या बोलते हैं? ये कॉकपिट। ठीक है, इसका तो देखो पायलट ये इसके विंग्स हैं। वहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ चंद्रयान प्रक्षेपण का सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया गया। ये जो रोवर है चांद पे गया था वाटर को फाइंड करने के लिए और हीलियम 3 और अदर मिलियन मिनरल्स फाइंड करने के लिए। और जो ये कनेक्टर्स है इससे उसको कनेक्टिविटी मिलती है। ये वाले सारे डिस्क पे टीचर एनिफ्लिप ने बताया कि ये प्रदर्शनी छात्रों के बीच टीम वर्क और सहयोग की क्षमता बढ़ाने के साथ उनकी क्रिएटिविटी निखारने का एक बेजोड़ उदाहरण बनी है। We are organizing our annual Arts and Science exhibition, Spectrum Galleria, today. And you can see a lot of effort from the students who have made fabulous art exhibits and science models. NEP says that students should not only learn theory, but they should have experiential learning. And such activities provide a platform for our students to express their creativity, their unique skills, their critical thinking, and their talents. We are also having entertainment programs presented by the children like dance, songs, where they can express themselves. शाला खेल विभाग के बच्चों द्वारा प्रदर्शनी में इंडोर एवं आउटडोर खेलों के स्टेडियम मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। The length of the court is 25 meter and the breadth is 16 meter. Here the teams of NBA and in India we follow the rule of FIBA. सर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया हमने मॉडल, जैसे इंटरनेशनल आप खेलते हैं या फिर नॉर्मल कभी फुटबॉल खेलते हैं तो उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पे हमने स्कोर बोर्ड भी लगाया है। ये ऊपर इसकी जो छत रहती है वो है, नीचे इसकी लाइटें भी हैं। हमने लोगों के लिए बैठने के लिए सीट्स भी लगाई हैं और ये ग्राउंड है। ग्राउंड आपका मेजरमेंट ग्राउंड पूरा मेजर करके बनाया गया है जैसे इंटरनेशनल में नॉर्मली रहता है। कॉर्नर फ्लैग्स है जो 5 फीट से ज़्यादा की नहीं रहते हैं। गोल पोस्ट है और हमने इसमें सेंटर लाइन भी बनाई है। सेंटर लाइन जो और पेनल्टी मार्क हर चीज़ हमने एक चीज़ मेजर करके बनाई है। Which is your favorite team? Sir, Father India. Football. छात्र छात्राओं ने स्टॉल पर स्मैश हिट का खूब आनंद उठाया। टीचर जेसी ने बताया कि प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया में हमने प्रकृति का असली रूप दिखाने की कोशिश की। Hello everyone. This year we are having our annual Science and Art exhibition 23-24, where we are showing the nature in its pure form till the destruction of the forest. Along with that, we have many other things proposed in the rooms, as well as we are having the fit outside the campus. स्पेक्ट्रम गैलरिया के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा रोमांच और डर से भरी चीखों से गूंजता हॉन्टेड हाउस, जिस पर बच्चों ने हमसे अपने अनुभव साझा किए। एंजॉय नहीं किया? मजे आया? क्या क्या चीजें अंदर देखने के लिए? मास्क भी पहने हुए।
अच्छा अच्छा, आपको डर तो नहीं लगा? नहीं लगा डर? बिल्कुल भी नहीं। एंजॉय किया आपने? ओके। प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया के दौरान विद्यालय का मैदान फास्ट फूड, देसी फूड, चाट बिरयानी जैसे व्यंजन की खुशबू से सराबोर हो रहा था, जबकि पेस्ट्री, आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल बच्चों के पसंदीदा स्टॉल थे। प्रदर्शनी में स्कूल की ओर से फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध थी। वहीं फूड परचेज के लिए कूपन काउंटर भी बनाए गए थे। टीचर सुमा जोस ने बताया, प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया में स्कूल के बच्चों ने अपने टैलेंट को दिखाया। आज हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें आप देख ही रहे हैं भीड़ इतनी है। यहाँ बच्चों ने अपने टैलेंट्स को शो किया है, बहुत मॉडल्स बनाए हैं। उसके अलावा आर्ट के जो बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह हैं। उसके अलावा चंद्रयान 3 जो बच्चों ने बनाया उसका भी सफल जो है लॉन्च हुआ है। इसके अलावा कल्चरल डांसेस हैं अलग अलग स्टेट्स के, और साथ में बहुत सारे स्टॉल्स जिसमें खान पान डिफरेंट वैरायटीज़, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टिनेंटल हो। खास बात ये रही कि सेंट पॉल कोएट की उद्घोषिका भी इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का मैसेज देती नजर आई, जो कि काबिले तारीफ है। Kindly put the waste in the waste bin, keeping in mind the theme of our exhibition, which is environment friendly theme. So kindly put your waste in the dustbin and help us in keeping the environment clean. Thank you. वहीं बेलपुरी स्टॉल की महिलाएं नगर निगम भोपाल की जीरो वेस्ट योजना के अंतर्गत स्टॉल चलाती नजर सर, हमने डिस्पोजेबल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है, ताकि हम कोई प्रोग्राम करें तो बिल्कुल कचरा ना हो। सकारात्मक सोच जो है स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम करती है, और स्वच्छता हमारा उद्देश्य है कि हम कचरा कम से कम करें। इसीलिए शहर में हमने 20 बर्तन बैंक भी चला रखे हैं कि लोग जो है डिस्पोजेबल का यूज़ ना करें और ये स्टील के बर्तन यूज़ करें। जीरो वेस्ट प्रोग्राम का जो नगर निगम का है, वो भी हम अपना हमेशा शो करते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो जीरो वेस्ट के साथ होगा। प्रदर्शनी में लिट्टी चोखा के स्टॉल पर छात्र छात्राओं की भीड़ लगी है। वहीं अभिभावकों और छात्राओं गोलगप्पों के खूब चटकारे लिए। स्टॉल पर गर्मा गर्म मोमो से उठती भाप की खुशबू भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती रही। स्कूल परिसर में शाम तक अभिभावकों और छात्रों की भारी भीड़ इन व्यंजनों के लुत्फ उठाते देखी गई। प्रदर्शनी में मेहंदी, आभूषण और गर्म कपड़ों के स्टॉल पर महिला वर्ग की भारी भीड़ लगी रही। टीचर रीना पॉल ने प्रदर्शनी की सफलता का श्रेय अध्यापकों और छात्रों के बीच सामंजस्य और सकारात्मक परिश्रम को दिया। We have made a proper models and the students are done the work very enthusiastically. They are the teachers, students and principal together have worked hard for this combination. And here we can see that we have a cultural fiesta in the Chavra Hall where the students are showing their cultural programs, dance, smile and many more items. प्रदर्शनी में आए लोगों ने बच्चों की कलाकृतियों एवं मॉडलों की जमकर सराहना की। वहीं प्रदर्शनी स्पेक्ट्रम गैलरिया के मौके का सभी ने भरपूर आनंद उठाया।